Good afternoon to all the dearest one who are waiting for the next lecture of bonding and molecular structure. We have we are dealing with hybridization. We have finished sp, sp2, sp3, sp3d. In the last lecture we have taken sp3d hybridization. Let us have a look from the first. Sp hybridization shape is linear, the angle is 180 degree. In sp hybridization always there is no lone pair. In sp2 hybridization, if all the 3s and 2p mean 3 electron pairs in sp2 are bond pair, then the shape, as you know from VSEP, are trigonal planar. But if suppose you have one lone pair and 2 bond pairs, then the shape becomes what is? Then the shape becomes bent. In case of sp3 hybridization, the shape is tetrahedral. If all the 4 electron pairs are bond pairs, if you have 3 bond pairs and 1 lone pair, the shape becomes pyramidal. If you have 2 bond pair and 2 lone pair, the shape becomes bent. After that, in the previous lecture, like in sp3 also, in sp and sp2, we have discussed the orbital diagram of ethane, ethene and ethyne in detail. Then we took sp3d hybridization, where we have took all the 5 electron pairs are bond pair. The shape was trigonal bipyramidal with 2 set of angles, 2 of 90 degree and 3 of 120 degree, and 2 set of bonds, 2 are axial bonds and 3 are equatorial bonds. And axial bonds are longer than equatorial bonds because they experience more repulsion as the angle is only 90 degree. So let us continue our journey for hybridization. So let us, of course, that topic is same as we have bonding. There is no anything different. But in this, I want to give you 2 examples of sp3d hybridization where the lone pair is also there. So let us write a first question after the same sp3d hybridization. You can write ClF3. All of you start writing the question together. ClF3 has 5 electron pairs. ClF3 has 5 electron pairs, but the shape is not trigonal bipyramidal. But the shape is not trigonal bipyramidal, है ना? तो शेप जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है. सो ClF3 has 5 electron pairs, but the shape is not trigonal bipyramidal, but it is T-shaped. Why? But it is T-shaped. Why? It is T-shaped. Why? ओके, बढ़िया क्वेश्चन है. यह आपने VSEPR के टेबल में पढ़ा हुआ है. अगर आपको मैं रिवाइज करवाऊंगी विद इन 1 मिनट. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विदाउट लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, शेप बिकम्स सीसॉ. 3 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर, शेप बिकम्स टी शेप. इसमें सबसे ज्यादा कैटेगरी था. 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, द शेप बिकम्स लीनियर. हैव यू रिमेंबर? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विदाउट लोन पेयर, PCl5 का एग्जाम्पल पढ़ा था अपन ने. 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, SF4 पढ़ा था, सीसॉ. 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, अपन ने टी शेप पढ़ा था, ClF3 का. 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, हमने पढ़ा था HCF2 ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, शेप इज लीनियर. उसी को हम VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन को साथ लेके चल रहे हैं जैसे हम पहले से कर रहे हैं. तो यहाँ कह रहा है कि ClF3 के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बेटा, लेकिन शेप उसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है, बल्कि क्या है शेप? टी शेप. तो अब हम ऐसे कहेंगे, हम मतलब इस तरह से आप इसको डिपेक्ट करेंगे. आपने ये Cl लिया है ना, आपको पता है Cl का कॉन्फ़िगरेशन, ये सेंट्रल एटम है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है ना. ये आपका 1s2, ये आपका 2s2, ये 2p6, 3s2 एंड 3p5 हो गया. हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा, क्योंकि आज अपन हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन पूरा रिवाइज करते जाओ कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज वी आर टेकिंग ओनली द
आउटर शेल। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम आउटर शेल ले रहे हैं, ये हमें इससे इंटरेस्ट है। तो ये हमारा 3s है आउटर शेल और ये हमारा 3p है आउटर शेल। ठीक है, ये हमारा 3s और ये 3p हो गया। 3s में मेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आ गया मेरा 3p। अब इस तरह से मैंने देखा कि सेंट्रल एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन जब आप देखोगे Cl जुड़ किससे रहा है? फ्लोरीन से। कितने फ्लोरीन से Cl जुड़ रहा है बेटा? 3 फ्लोरीन से Cl जुड़ रहा है और एक फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड है, जैसे Cl का भाई है, छोटा भाई है फ्लोरीन Cl का। तो यह आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p5। ये आपके आउटर शेल है। यह आपका 2s के ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके और ये आपका 2p का, यह आपका 2p है, यह आपका 2p के 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। कहने का मतलब ये है एक फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड है। हाउ मेनी फ्लोरीन एटम्स आर देयर विच आर अटैच्ड विद Cl? 3. So in total we are having 3 unpaired electron, correct? But in the ground state of Cl you are having only 1 unpaired electron. So what is the thing you have to do? You have to draw after 3p we have 3d. यहाँ पर एक प्रॉब्लम बच्चे को आ सकती है। कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि मैडम आपने 4s क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल 4s की एनर्जी 3d से कम है, लेकिन 3d के अंदर ऑर्बिटल ज़्यादा हैं और 3d और 4s की एनर्जी नियरली कंपेरेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रीफर करेगा 3d में जाना। समझ गई बात? तो अब यहाँ पर यह आपका ग्राउंड स्टेट है, जिसे हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा करते हैं। Excited state is needed because you require 3 unpaired electron because 3 fluorine atoms are attached with Cl. So what you have to do in the excited state, 1 electron will move from 3p to 3d. तो इससे फायदा क्या होगा बेटा आपको? इससे आपको फायदा ये हो रहा है कि आपको अनपेयर्ड 3 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपने बना दिया, ये आपका हो गया, ये आपने ऐसा बना दिया। सॉरी, यहाँ पर ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला गया? 3d में चला गया। तो ये 3d में आपके, ये देखिए आप कितना बढ़िया डिपेक्ट कर रहे हैं अपन। ये आपका एक्साइटेड स्टेट है और यहाँ पर आपका ये आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह। तो इस तरह से आपका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए और हमें 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब हमारा क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी। कैसे मिक्स होंगी? एक 3s, 3 3p और d, मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल 1s and 3p and 1d will mix together to form how many? 5 sp3d hybrid orbitals, जहाँ पर हम फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1s, 3p and 1d atomic orbitals mixed together to form 5 sp3d hybrid orbitals. Now we are drawing the hybrid orbitals. ये हमने बना दी hybrid orbitals, आपने बना रहे हैं। ये आपकी, ये आ गई आपकी hybrid orbitals। यहाँ पर आपने ये इलेक्ट्रॉन बनाया और ये d का आपका इलेक्ट्रॉन है, ये देखें आप, ये आपका आ गया ये। ठीक है, अब हम आपको फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डालना है इसमें। तो हम लोग फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को जब डालेंगे तो ये आपके फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स विद अदर पेन आई विल ड्रॉ इट। ये ब्लू से डाल दिया मैंने, ये आ गया आपका। सॉरी, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको एक पोस्टुलेट में या आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया गया था, जो कि नॉर्मल ओवरलैपिंग से अलग था, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। लाइक हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स बोथ कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसलिए हमने क्या देखा कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? ये देखो आप, ये पूरा हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा है। लेकिन ध्यान से देखना आप, इसमें से ये 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आए हैं फ्लोरीन के, ये 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, लेकिन ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया है, ये लोन पेयर्स हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया, बट इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन वी हैव हाउ मेनी? 3 बॉन्ड पेयर्स बट 2 लोन पेयर्स। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर, lone pair then lone pair bond pair then bond pair, hence the shape is distorted and becomes bent, T shaped.
आया समझ? तो अपन यहाँ कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम लिखेंगे here among 5 sp3d hybrid orbitals, among 5 sp3d hybrid orbitals, 3 are having bond pairs, 3 are having bond pairs, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड पेयर्स हैं, but two हाइब्रिड ऑर्बिटल्स having lone pairs है ना, but 2 hybrid orbitals having lone pairs. So here among 5 sp3d HOs there are 3 are having bond pairs and 2 hybrid orbitals having lone pairs. So repulsion है ना, repulsion हो रहा है, repulsion between किसके बीच में, repulsion between bond pair lone pair is greater than bond pair, hence the shape is distorted, hence the shape is distorted, distort हो जाएगा shape and becomes T-shaped। कितना बढ़िया आंसर हो गया। अब आप यहाँ पर शेप भी बना सकते हैं। ये आपका Cl है, ये आपका F है, ये आपका F है, ये आपका F है, ये T शेप है। अगर यूँ देखोगे आप T दिख रहा है ये, और यहाँ पर आपका एक ऑर्बिटल में ये लोन पेयर है और दूसरी ऑर्बिटल में ये लोन पेयर है। एंड आपको बताया गया था कि लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशंस, यू शुड रिमेंबर दिस। वाई? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन 120 डिग्री एंगल से सेपरेट होते हैं, तो दे एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन। तो यू शुड रिमेंबर दैट द लोन पेयर्स शुड ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशंस टू मिनिमाइज रिपल्शन। ये आखिर में एक लाइन लिख लेना कि लोन पेयर्स शुड ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशंस टू मिनिमाइज रिपल्शन। जल्दी से पूरा कर लें। आपको देख रहे हैं कि कितना बढ़िया अपन ने ये डिपेक्ट करा है, और इसके अंदर हमारा बढ़िया, अगर आप गौर कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि बढ़िया हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जैसे वो एक चीज़ अपन ने लिखी नहीं है कि यहाँ लोन पेयर से शुरू कर दो ना, लोन पेयर repulsion greater than bond pair lone pair, which is greater than bond pair. So finish it fast, and after drawing the structure, don't forget to write the line lone pairs occupy the equatorial positions to minimize repulsion, understood? तो जल्दी से ये काम कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जब तक आप ये पूरा कर लें, मैंने ये वाला क्वेश्चन मिटा रही हूँ बिकॉज अभी अपन sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अभी मैंने किसका दिया था बेटा? ClF3 का आपको दिया था। अब मैं आपको देने वाली हूँ किसका? SF4। एज वी नो फ्रॉम VSEPR थ्योरी भी आप जानते हैं कि SF4 याद है। SF4 जो है आपका, SF4 इज द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड हैविंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन होएगा उसमें, लेकिन शेप उसका C100 होएगा। मतलब जब हम ये डिपेक्ट करेंगे, अभी हाइब्रिडाइजेशन आप डिपेक्ट करोगे ना, तो आप देखना उसमें आपको दिखेगा 5 में से 4 बॉन्ड पेयर दिखेंगे आपको, और एक आपको लोन पेयर दिखेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस स्टार्ट टुगेदर। SF4 हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्वेश्चन, SF4 हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, SF4 हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स means sp3d hybridized, but the shape सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, is not trigonal bipyramidal, is not trigonal bipyramidal, but it is seesaw। आप लोग जब छोटे थे
आपको याद है कि आप पार्क में जब जाते थे आपको सीसो मिलता था, याद है? एक ऊपर चला गया, एक ऐसा ऊपर और ऐसा नीचे, फिर यूं करके नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से। तो इसका शेप SF4 का सीसो जैसा शेप है, ना कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जबकि वो भी क्या है, वो भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला कंपाउंड है और उसमें भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। सेम का सेम, मतलब एक्सप्लेनेशन सब कुछ सेम रहेगा, बट हमारे पास क्योंकि SF4 है तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि हम सल्फर ले रहे हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर आप सब जानते हो 16 होता है। जब हम इसको लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, इतने अपन ने कर लिए। कब से अपन हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में बता रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल कवर करी है अपन ने। तो अब मुझे लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ आउटर शेल की ऑर्बिटल्स। तो ये हमारी आउटर शेल की ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारा 3s है, ये हमारा 3s है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, ये हमारा 3p है जिसके अंदर हमारे ये आपका 3 और ये आपका 4, ये आपका 3p है। ये इसके बाद 3d यकीनन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें खुद दिख रहा है कि सल्फर से कितने, आपको देखिए आप अगर आप देखेंगे कि सल्फर से कितने फ्लोरीन एटम जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं। और ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास ओनली इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and each fluorine atom has how many? 1 unpaired electron. So total you have 4 fluorine atoms, means 4 fluorine atom के पास कितने unpaired electrons होंगे बेटा? 4 unpaired electrons होंगे और हमारे पास यहाँ पर only 2 हैं। तो we require an excited state, उस excited state में हम एक इलेक्ट्रॉन 3p से 3d में लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा 3s आ गया, ये आपका 3s है। अब यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम कहाँ करेंगे बेटा? 3d में हम एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, यह आपका एक्साइटेड स्टेट है, यह आपका 3d में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपके पास फ्लोरीन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के पास भी हमारे पास कितने हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास भी हैं। अब हम वही करेंगे जो करते हैं, एक s 3p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी। तो वी से द सेम थिंग, 1s 3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, है ना, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म कितनी बनाएंगे? 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, टू फॉर्म 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई, यहीं पर हम इसको डिपेक्ट कर देते हैं, यही कहीं हम कर देते हैं, ये हमारी पूरी हो गई। बट यहाँ पर हम क्या करना है हमें कि इसके अंदर भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, क्योंकि आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और आपको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के लाना है, तो ये आपका आ गया, दिख रहा है आपको, ये आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी है। Here among 5 sp3d hybrid orbitals, अपन 3 के बदले क्या कहेंगे यहाँ? 4. In place of 3 we will write 4 are having bond pairs but 1 hybrid orbital having lone pair. So repulsion between lone pair is greater than bond pair which is greater than bond pair. Hence the shape is distorted and becomes T shape के बदले seesaw। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जिस बच्चे को VSEPR आता है अच्छी तरह, उसको ये दोनों को टेली करके ना बढ़िया इस वक्त हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ये जो खत्म होएगा ना आज लेसन, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रही है अभी तक, जहाँ पर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, ये पूरा आज एंड हो जाएगा उसका। अगले लेक्चर में वी विल टेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि लास्ट थ्योरी थी बॉन्डिंग की। ओके, तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको स्ट्रक्चर सीसो का और बना देती हूँ। वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सीसो, उसके बाद अपन नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे जो आपका sp3d2 होएगा, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द, देखो जब भी तुम कोई ड्रॉ करोगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली या sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाली कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करोगे बेटा, तो आपके मन में एक बात होना चाहिए कि आपका जो ज्योमेट्री है ना वो सही होना चाहिए। क्या मतलब? आपकी ज्योमेट्री सही होना चाहिए। ये जैसे आपके पास S है, मतलब आपका जो अरेंजमेंट है वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ही होना चाहिए, जिसके अंदर आप जानते हो कि एक एक्सियल बॉन्ड है ना,
ये इक्वेटोरियल को थोड़ा सा अपन ऐसा कर दें, ये ऐसा इक्वेटोरियल आ गया, फिर आपका ये एक्सियल आ गया, फिर आपका ये इक्वेटोरियल आ गया, ये सीसॉ है, ये एक फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन, ये ऊपर ये नीचे, और यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ऑलवेज हमेशा मॉलिक्यूल चाहता है कि लोन पेयर्स को कहाँ रखे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, बाकी कहीं पर भी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स नहीं होते, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा हमेशा चाहता है कहाँ रहे, लोन पेयर कहाँ रहे, इक्वेटोरियल पोजीशंस में, टू मिनिमाइज रिपल्शन एज द एंगल इज 120-120 degree. So I hope that all my dear children are like very done very well for hybridization, and this is the end of sp3d hybridization. आप जब तक पूरा लिख लें जल्दी से, मैं जब तक रब कर रही हूँ, और इसके बाद अपन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं बेटा, आपका देखो sp हो गया डिटेल में, sp2 हो गया डिटेल में, sp3 हो गया बहुत डिटेल में, जिसमें ईथेन पढ़ाया, अमोनिया पढ़ाया, वाटर पढ़ाया, मीथेन पढ़ाया, फिर आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन पिछली क्लास में शुरू हुआ था, और अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, अपन अभी तक sp3d हाइब्रिडाइजेशन के ही एग्जाम्पल्स और डिटेल दे रहे हैं। अब हमारा sp को हमने 1 दिया था, sp2 को हमने 2 दिया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हमने 3 दिया था, sp3d को आपने क्या दिया था, 4 दिया था। अब आपके पास आ रहा है sp3d2, तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, sp3d2, तो अब आप लिखेंगे 5, तो 5 हमारा आएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब एक s 3 p और 2 d AOs यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी एक साथ, तो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, 3 ये 2 ये 1 ये 6, दिस इज नॉन एज sp3d2 hybridization. So let us write the definition fast. When 1s 3p and 3p पे underline, 1s पे underline, and 2d atomic orbitals mix together, then 6 sp3d2 hybrid HOs यानी hybrid orbitals are formed, ठीक है। When 1s 3p and 2d AOs mix together, then 6 sp3d2 HOs are formed. This is known as sp3d2 hybridization. I hope कि यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा ये डेफिनेशन। हर मतलब टाइप में अपने डेफिनेशन के बाद हमने एक एग्जाम्पल दी है, और आप एक एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में रख लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो इसके अंदर भी एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेटा, वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं SF6। तो व्हाट इज द एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अभी अपन ने SF4 करा था, अब हम SF6 कर रहे हैं। ये S हमारा अभी जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि हमें सबको आता है। ये 2s2 2p4 हो गया, ये आउटर शेल हो गई, ये हमारा 2s का आ गई, ये 2p ऑर्बिटल की 3 में डिवाइड कर दी सब शेल, एंड दिस इज आर d। हमें पता है कि d आएगा, वैसे भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि अपन जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे ना sp3 के बाद, यानी sp3d, sp3d2, इसके बाद भी एक है sp3d3, ये सब वो हाइब्रिडाइजेशन है जिनमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है। तो ये 3s हो गया आपका, सॉरी ये 3s था, ये मैंने गलत लिखा है, 2s2 2p6, 3s2 3p4, यहाँ से करना है, नॉट दिस। तो ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास, ये 3p के आपके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम देखेंगे कि सल्फर इज अटैच्ड विद हाउ मेनी फ्लोरीन एटम्स। सल्फर इज अटैच्ड विद 6 फ्लोरीन एटम, ईच फ्लोरीन एटम contain 1 unpaired electron. So in total you require how many? 6 unpaired electrons and you are having only 2 unpaired electron. तो अब क्या होगा बेटा, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर एक्साइटेशन 2 ऑर्बिटल एक्साइटेशन करेंगी, एक यहाँ से यहाँ जाएगा और एक यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अब हमारा एक्साइटेड स्टेट आएगा, यह आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ चला गया एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाना है, और फिर हमारा
ये देखें आप, ये 3D आ गया आपका, दिस इज योर 3s, दिस इज योर 3p एंड दिस इज योर 3d। ये दो थे, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ, तो ये आपके पास इस तरह से। इस टाइम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए बेटा? आपके पास टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस टाइम आ चुके हैं। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू आर हैविंग? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपका एक्साइटेड स्टेट हो गया। आफ्टर हैविंग एन एक्साइटेड स्टेट, वही वाली बात कि 1s प्लस 3p प्लस 2d, 2 कर दो, ऐसे नहीं 2 कर दो पूरा, 2d एओज मिक्स टुगेदर टू फॉर्म, कितनी बनेंगी इस टाइम? 6, टू फॉर्म 6 HOs। बस अब हम लास्ट स्टेप में पूरा बना के और फिर अलग पेन से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के बता देंगे। तो यही काम आप अगर समझदार बच्चे हो तो यकीनन अब आपको पूरा रट गया होगा एक एक चीज़, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इसको हमने एग्जाम्पल दे दी है कि अब यकीनन आपको रट गया होगा। ये सब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे अगर आप गौर से तो यहाँ पर लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो रेगुलर ज्योमेट्री है स्टार्टिंग वाली। तो अब इसके अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग ब्लू पेन से कर रही हूँ मैं, ताकि दिखता जाए आपको। ये सारे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा, और ये आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है पूरा, ये है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यकीनन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने VSEPR का टेबल रटा हुआ, जिस बच्चे ने VSEPR का टेबल रटा हुआ है, मैं पक्का बोल रही हूँ, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। नाउ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, ये देखिए आपके पास सारे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में मैं रिवाइज करवा देती हूँ VSEPR कि अगर हमारे पास 6, ये 6, 5 and 1 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ऑल ऑफ देम आर बॉन्ड पेयर्स, देन द शेप इज गिवन बाय द नेम ऑक्टाहेड्रल। ये एक और नाम था स्क्वायर, ये स्क्वायर है हमारा, एक पिरामिड ऊपर से आया, एक पिरामिड नीचे से, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल शेप कहा जाता है इसको। अगर ऑल द 6 आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बॉन्ड पेयर्स हैं एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इसी के अंदर एक रिवीजन चाह रही हूँ मैं बताना, अगर 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर, तो शेप में बाई हटा दोगे, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। और अगर आपका 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं तो पिरामिडल गायब हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अभी तो खैर हम SF6 पढ़ रहे हैं जहाँ पर ऑल दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे शेप इज, इसका शेप क्या है बेटा? दोनों नाम आप शेप के लिख लेंगे, ऑक्टाहेड्रल भी कहा जाता है इसको, वी विल से ऑक्टाहेड्रल, और एक और नाम है इसका स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है बेटा। और एंगल में आप लिखेंगे all the angles are of 90 डिग्री each। हर एंगल कितनी है? 90 डिग्री की। all the angles are of 90 डिग्री each। अब हम शेप बना देंगे बढ़िया। ये हमारा ऐसे ही पहले भी हम VSEPR में बना चुके हैं। ये 4 फ्लोरीन आप स्क्वायर में ले आइए, ये 4 फ्लोरीन आपके काय में आ गए बेटा? स्क्वायर में आ गए। एक फ्लोरीन आपका ये नीचे आया और एक फ्लोरीन आपका ये ऊपर आ गया। इस तरह से आप चाहें तो ये स्क्वायर को ऐसे कर दें डॉटेड लाइन से, दिस इज योर स्क्वायर, 1 pyramid is from above and 1 pyramid is from below, so the shape becomes square bipyramidal। so I hope कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू द फेवर कि आप जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। हरी अप चिल्ड्रन, जल्दी से आप बना लेंगे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया है और आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। अब हम आपको एक मतलब जो अपनी NCERT है बेटा, इसके अंदर इन्होंने ये दिया है। अभी अपन इसमें डिटेल में नहीं जाते क्योंकि अगले साल हमें ये पूरा डिटेल में है, बट मैं आपको ऐसी एक चीज़ समझा रही थी, वो अभी इस साल नहीं है किताब में, बट मैं चाह रही थी कि आपको दे दूँ। जैसे उसमें था कि sp3d2 के बाद एक sp3d3 भी आता है। मतलब एक बार समझो, ये sp3d2 है ना, एक चीज़ मैं अलग से समझा रही हूँ आपको यहाँ पर, ये तो हो गया ख़त्म। जैसे हमने sp3d करा ना, है ना, ऐसे ही एक इसका उल्टा कर दो, dsp3 भी होता है, बोथ सेम होते हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ऐसे ही अगर हमारे पास sp3d2 है तो उसका उल्टा भी कर दोगे ना, d2sp3, तो वो भी ऑक्टाहेड्रल होता है, बट इसमें डिफरेंस है, वो अगले साल डिटेल में बताया जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में लिख लो sp3d या dsp3, शेप आपका वही ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगा, मतलब अगर लोन पेयर नहीं है
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगा, और sp3d2 हो या d2 sp3 शेप आपका ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। तो इस तरह से आप ये लिख लें अलग से एक बॉक्स में करके, ऐसे ये आप लिख सकते हैं। हरी अप चिल्ड्रन, sp3d या dsp3 शेप रहेगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और d2 sp3 या sp3d2 आपका शेप रहेगा ऑक्टाहेड्रल। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स अभी पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट में बता रही हूँ आपको, वो इस साल बुक में नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, बट वो जब हमने पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ही लिया है, हमने इतनी मेहनत से पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, तो हम क्यों उसको छोड़ें ना। ये भी है कि हम बिला वजह उसको छोड़ें, तो वो हम नहीं करना चाह रहे हैं। हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि एक हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसका नाम होता है sp3d3। जैसे sp3d पढ़ लिया, sp3d2 पढ़ लिया, ऐसी एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसका नाम होता है sp3d3, sp3d3। तो उसके बस अपन को सिर्फ एग्जाम्पल दूंगी, मैं आपको शेप दूंगी और एंगल बता दूंगी बस, और एग्जाम्पल देख लेंगे। बाकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो किताब में नहीं है, बट वो इजी है, ऑरली समझ लो। क्या मतलब, एक एस 3p और 2d, तो लिखने की जरूरत क्या है, sp3d3 3d। तो हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप समझो आप क्या होता है, शेप होता है इसमें पेंटागोनल, पेंटागोन एक बनता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। फॉर नॉलेज यू शुड रिमेंबर दिस, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ओके माय डियर। एंड एंगल, देखो आप समझ रहे होगे कि जो पेंटागोन होते हैं उसकी एंगल 72 डिग्री होती है। पेंटागोन 72 × 5 करो 360 आएगी, और पिरामिड वाली ऊपर नीचे से गिरती हैं तो 90। तो एंगल्स क्या होंगी, 5 एंगल्स आर ऑफ 72 डिग्री ईच, 2 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। सो आई होप कि आपको शेप भी समझ में आ गया, आपको एंगल भी समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल है इसकी, वैसे भी एग्जाम्पल बहुत रेयर होती हैं, तो वो एग्जाम्पल आप मन में याद कर लो, IF7। तो IF7 जो है वो आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल की बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया। आप इसमें ज़रा सा रिवाइज क्या करेंगे, जो आपको मैंने x = SA + ½ करके मैंने वहाँ पर दिया था, अगर आपको याद हो VSCPR में हमने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था लास्ट लेक्चर 3 में VSCPR के हाइब्रिडाइजेशन बेटा बाद में पढ़ोगे, बट तुम उसकी मदद से निकाल सकते हो। तो एक एग्जाम्पल लास्ट दे रही हूँ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक अपन क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हम देख लें कि VSCPR और उसको हमने कैसे डिपेक्ट करा है। जैसे कि अगर आप लिखें गिव द हाइब्रिड स्टेट एंड शेप ऑफ, जैसे ये दे दूं मैं, गिव द हाइब्रिड स्टेट, क्वेश्चन डालिए जल्दी से, गिव द हाइब्रिड स्टेट एंड शेप ऑफ SO4 - 2। ये जैसे क्वेश्चन आ गया। अभी अगर आप ज़रा सा भी कंफ्यूज हो तो आप VSCPR का लेक्चर 3 देखेंगे, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला दिखेगा जिसमें मैंने ये दिया था। मैं इसलिए ये वाला क्वेश्चन अभी ले रही हूँ, वहाँ मैंने बहुत से करवाए थे इस जैसे, लेकिन मैं क्यों ले रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि इन दोनों को हम कैसे साथ जोड़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को और VSCPR को साथ मिक्स करना है हमें इस टाइम, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए SO4 में सराउंडिंग एटम्स कितने हैं बेटा, 4 + ½ G यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर शेल ऑफ सेंट्रल एटम। व्हाट इज योर सेंट्रल एटम, सल्फर। सल्फर के आउटर शेल में 6 है, माइनस V क्या है, वैलेंसी सराउंडिंग एटम की, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और कितने ऑक्सीजन है, 4, तो -8। ये E चार्ज होता है, अगर ये -2 चार्ज हो तो हमने कहा था अपोजिट लगाएंगे +2, ये हो गया आपका। अब आप देखें ध्यान से, 4 + ½ 6 - 8 -2 + 2 0, तो इंटू 0, तो ये x आ जाएगा आपका 4। और मैंने आपको टेबल दिया था, अगर आपको ज़रा सा भी याद है वो टेबल, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी मेरी बात, अगर आप समझ रहे हैं तो। ये मैंने हाइब्रिड स्टेट दिया था, यहाँ मैंने x दिया था और यहाँ मैंने हाइब्रिड स्टेट दिया था, 2 3 4 5 6 और 7। 2 के लिए मैंने sp दिया था, 3 के लिए मैंने sp2 दिया था, 4 के लिए मैंने sp3 दिया था, 5 के लिए मैंने sp3d दिया था, 6 के लिए sp3d2 दिया था और 7 के लिए sp3d3 दिया था, जो कि आपने अभी देखा।
कितना है x 4 है यानी sp3। तो हाइब्रिड स्टेट क्या है बेटा, sp3। सल्फेट आयन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मानता है, क्या मानता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन मानता है। और लोन पेयर का फॉर्मूला याद होगा हर बच्चे को, x माइनस सराउंडिंग एटम्स। x कितना आया 4, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 4, यानी लोन पेयर कितना है 0, यानी शेप टेट्राहेड्रल है। नो लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम लिखेंगे शेप टेट्राहेड्रल। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि VSEPR में मैंने आपको पढ़ाया था, और अब आपने क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया है, तो अब आपको यकीनन ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो इस तरह से थैंकफुली आज हम यहीं रोक देंगे, क्योंकि हमारा पूरा मेन टॉपिक खत्म हो गया है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। यकीनन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग समंदर है, वो एक अलग दुनिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आ रहे हैं आगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, सिग्मा पाई बॉन्ड, VSEPR, एक एक चीज़ इसकी चैप्टर की, मतलब ये चैप्टर बिल्कुल क्रीम चैप्टर है। इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि 2021 में भी हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है, बट बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ भी डिलीट? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि कैसे डिलीट कर दें हम। हर टॉपिक आगे आपको काम आ रहा है, इसलिए आगे वाले लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहें, जहां हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जब तक के लिए आप सबको मैं कहूँगी कि जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक वो आप कंप्लीट कर लें अच्छी तरह। स्टे blessed and study and take care of your health, and all the best from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. Don't forget to subscribe the channel, don't forget to like the video and share it with many more. All the best my dear children.